Hello friends, welcome to your channel Make Physics Easier by Mayur Agarwal. Today we'll start third part of sound, characteristics of sound. Two parts we have completed in previous videos, so we are going to start third part. It is very easy part, but very important from the point of view of board exam. Always remember my tagline, play with physics. If you will face any problem, then you can leave that problem in comment box. So let's start today's video. Characteristics of sound. First of all, I want to discuss with you what are the characteristics. The sound which we can hear around us, it has three characteristics. In that, the first characteristic is loudness. Suppose two sounds are coming to our ears and they are, one of them is faint and one of them is loud. कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो हमें लाउड अपीयर होते हैं और कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत सॉफ्ट या फेंट अपीयर होते हैं. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाउडनेस. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज पिच. Pitch means, in the other language, we can say pitch as shrillness. The sound which we are listening around us, that may be shrill or may be flat. अगर हम पिच के अकॉर्डिंग साउंड को सेपरेट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, सो वी हैव टू साउंड्स, श्रिल साउंड एंड फ्लैट साउंड. एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज क्वालिटी ऑफ साउंड. व्हेन two sounds which have different wave patterns. What are wave patterns? We'll discuss later in the video. When two sounds which have different wave patterns, those are called different quality sound. Like your instruments like guitar and sitar, both have different wave patterns. So if their loudness and pitch will be same, then only the sound will be produced by both devices, both musical instruments will be different, because the quality of sound, because each instrument emits out different wave patterns. That is why this is the main characteristic which is separating two different sounds. So we have to study these three properties in this video. Okay, now one by one we'll discuss each property. First of all, we are going to discuss loudness of sound. What is loudness? On what factor it depends? So first of all, I want to tell you, loudness is directly related to intensity, or we can say amplitude. If two sounds of same pitch, अगर हमें किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है तो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें कांस्टेंट रखना होगा, then only we can understand that characteristic. So loudness, if two sounds which have same pitch but they differ in loudness, they can be classified into soft and loud sound. What are they? सपोज अगर मुझे किसी क्लास में लेक्चर देना है विदाउट माइक, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एक लार्ज फोर्स के साथ अपनी वॉइस यूज करनी पड़ेगी. और जब मुझे किसी फ्रेंड से बात करनी है जो कि मेरे पास ही मुझसे 1 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है, तो उस कंडीशन में मुझे उतना फोर्स नहीं लगाना होगा, मुझे आराम से उससे बात करनी होगी. तो इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द थ्रोट. थ्रोट से जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट विल प्रोड्यूस अ loud sound or a soft sound. So if we are talking about these sounds are directly related to intensity, or we can say amplitude. Now what is the intensity? Intensity means the sound energy which is produced by a speaker in one unit area. Unit area means 1 meter square, we can say. The sound energy produced by a speaker in a unit area, in a second and in perpendicular direction. ये तीन keywords हैं. In unit area, that is the first keyword. In normal direction, normal means 90 degree, that is the second condition. And in a second. कोई भी सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो
यूनिट एरिया में, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में, नॉर्मली 90 डिग्री की डायरेक्शन में, और 1 सेकेंड में जो भी साउंड एनर्जी सेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सो इंटेंसिटी इज टोटली रिलेटेड टू लाउडनेस। अगर हम अपने साउंड को लाउड रखना चाहते हैं तो हमें उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी, और अगर हम अपने साउंड को सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो हमें उसकी इंटेंसिटी कम करनी होगी। नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं। व्हाट इज द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। लाउडनेस और इंटेंसिटी में कौन सब्जेक्टिव है और इन दोनों में से कौन ऑब्जेक्टिव है, देन यू हैव टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि इस पार्ट से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। इसका आंसर सुनिए और समझिए, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। अगर आप बात करो, सपोज आपका टीचर क्लास में सबसे आगे, क्लास में बोर्ड के पास खड़ा होकर आपको कुछ लेक्चर दे रहा है। अगर आप इमेजिन करो आप फर्स्ट सीट पर बैठे हो, आपका फ्रेंड लास्ट सीट पर बैठा है, तो क्या उस टीचर की वॉइस की जो लाउडनेस होगी दोनों को सेम सुनाई देगी? इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंस है। आप टीचर के पास हो, मतलब आप सोर्स ऑफ साउंड के ज्यादा पास हो, आपका फ्रेंड सोर्स ऑफ साउंड से काफी दूर है। सो ऑब्वियसली टीचर हर स्टूडेंट के लिए उतनी ही लाउडनेस से बोल रहा है, लेकिन हर स्टूडेंट को उसकी लाउडनेस की अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग सुनाई दे रही है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। दूसरी बात, सेंसिटिविटी भी यहां पर एक फैक्टर है। किसी किसी के कान, किसी किसी के ईयर्स बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो छोटी से छोटी लाउडनेस के साउंड को इजीली कैच कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के ईयर्स में ड्यू टू सम एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स उनकी सेंसिटिविटी वीक होती है, तो हो सकता है वही लाउडनेस उन्हें काफी कम लगे। तो ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं, सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर एंड द डिस्टेंस ऑफ द लिसनर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो लाउडनेस को वेरी कर सकते हैं। इसका मतलब क्लियर हो गया, लाउडनेस इज अ सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है जो इसे सुन रहा है, एंड जो इसको डिपेंड करती है, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी, या फिर हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, दीज आर द ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्टिव मींस ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रही है जो इन साउंड को प्रोड्यूस करा रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाउडनेस इज सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। यहां पर मैंने दो बातें आपको बताई हैं, सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर एंड द डिस्टेंस ऑफ द लिसनर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। और दूसरी बात, इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड, ये ऑब्जेक्टिव होती हैं और यही मेजरेबल भी होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए लाउडनेस को आप मेजर करिए, तो हम लाउडनेस को नहीं मेजर कर सकते। लाउडनेस को सिर्फ क्लासिफाई किया जा सकता है लाउड और सॉफ्ट साउंड में, लेकिन अगर हमें उसकी मेजरमेंट निकालनी है तो हमें इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड को मेजर करना होगा। देन वी कैन से दैट लाउडनेस इज हाउ मच, लाउडनेस कितनी है। लाउडनेस इज नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, बट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। लाउडनेस हैज सब्जेक्टिव नेचर and intensity or amplitude is objective nature. So we have to keep this point in your mind. This is a topic related to loudness. ये हमारा loudness का पूरा पार्ट हो गया है। Next we have to understand some terms, some factors which affect loudness. Point 1, surface area. Have you imagined that कि जो हम लोग स्कूल्स में बेल्स लगी होती हैं, मैन्युअली बेल्स, या आप लोग मंदिर जाते हो, टेम्पल्स में भी जो बेल्स होती हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट साइज। और आपने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी, डिफरेंट साइज बेल्स विल प्रोड्यूस द साउंड हैज डिफरेंट लाउडनेस। जो अलग अलग साइज की बेल्स होती हैं उनका जो साउंड प्रोड्यूस करने का लाउडनेस है वो भी डिफरेंट होता है। व्हाई? Because of this factor, because surface area increases the amplitude. If the surface area large, then the loudness will be more. If the surface area will be less, then the loudness will be less. So this is the first factor on which loudness depends. The second factor is, which I have discussed,
डिस्टेंस, और इसे आप पूरा समझोगे, नॉट ओनली डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड द सोर्स ऑफ साउंड। डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन होता है लाउडनेस का? इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम लोग ज्यादा डीपली बात नहीं करेंगे, बस हम इतना समझ लेंगे, डिस्टेंस अगर बढ़ेगी, इफ द डिस्टेंस विल इंक्रीज देन द लाउडनेस विल डिक्रीज, एंड इफ द डिस्टेंस विल इंक्रीज देन द लाउडनेस विल डिक्रीज। अगर आप अपने टीचर की आवाज फर्स्ट सीट पर बैठ के सुनोगे तो आपको उसकी लाउडनेस ज्यादा लगेगी, और अगर आप लास्ट सीट पर बैठ के उसी की आवाज सुनोगे तो आपको लाउडनेस कम लगेगी। सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडीज। जैसा कि आपको सेकेंड वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, ड्यू टू रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड्स विल बिकम एक्सट्रीमली लार्ज। तो अगर जो सोर्स ऑफ साउंड है उसके आसपास कुछ रेजोनेंट बॉडीज हैं, उनमें अगर रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाएगा तो रेजोनेंट की वजह से भी एम्पलीट्यूड काफी बड़ा हो जाएगा, काफी लार्ज हो जाएगा, जिस वजह से लाउडनेस भी बढ़ जाएगी। सो दिस इज द थर्ड फैक्टर। सो दीज आर सम फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू लाउडनेस ऑफ साउंड। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो लाउडनेस ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फॉन। इट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस। अगर लाउडनेस की यूनिट पूछी जाती है, सो दिस फॉन, PHON। और द सेकेंड थिंग डेसिबल, एक इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। डेसिबल जो यूनिट होती है, दैट इज द यूनिट ऑफ लेवल ऑफ साउंड। सो दीज टू यूनिट्स यू हैव टू डिफरेंशिएट। आपको दोनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। फॉन इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस एंड डेसिबल इज द यूनिट ऑफ लेवल ऑफ साउंड। सो दीज टू एडिशनल पॉइंट्स आर ऑल्सो देयर। सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है? व्हेन टू different sounds of different frequencies and different qualities can be distinguished properly, but अगर आपके पास दो sounds same quality के, सेम पिच के आपके पास आ रहे हैं और आपको दोनों डिफरेंशिएट कर सकते हो, इट मींस देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ दोज टू साउंड्स. सो द डेफिनेशन ऑफ लाउडनेस विल बिकम इफ टू साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड सेम क्वालिटी can be differentiated by a quality, by a characteristic, that characteristic is called loudness. अगर दो sounds जिनकी pitch और quality same है, अगर फिर भी हम उन्हें separate कर सकते हैं, अलग अलग समझ सकते हैं, तो उस property का, उस characteristic का नाम होता है loudness. Loudness किस quantity पर depend करती है? Intensity और amplitude. Loudness किस nature की quality है, किस nature की characteristic है? Subjective या objective? So always remember, loudness is a subjective property because it depends on the subject. जो सुन रहा है उस पर डिपेंड करती है. And intensity और amplitude is an objective property. So this is the complete case of loudness. One more thing I want to discuss with you, the graphs. कभी कभी एग्जाम्स में ग्राफ की हेल्प से आपसे पूछ लिया जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड लाउड साउंड और विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग अ हार्ड साउंड, सॉफ्ट साउंड, सॉरी. ये मैंने आपके सामने दो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाए हैं. ओके, नाउ इफ यू आर लुकिंग इन दिस ग्राफ द एम्पलीट्यूड्स वैल्यू, यहां पर आप एम्पलीट्यूड देखिए और यहां पर दूसरे ग्राफ में एम्पलीट्यूड देखिए. जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा है, यहां पर जो एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन द एम्पलीट्यूड इन द सेकेंड ग्राफ. तो इसका मतलब क्लियर है, ये वाला जो ग्राफ है दैट इज फॉर लाउड साउंड और ये वाला जो ग्राफ है दैट इज फॉर सॉफ्ट और फेंट साउंड. सो ग्राफिकल मेथड से इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पलीट्यूड. जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी, जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा उसकी लाउडनेस कम होगी. नाउ वी हैव कंप्लीटेड लाउडनेस. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पिच. वी कैन से इट इन द सिंपल लैंग्वेज, shrillness. What is pitch? When
two sounds of same loudness and quality can be separated. अगर दो साउंड्स आपके पास तक आ रहे हैं जिनकी लाउडनेस और क्वालिटी सेम है, फिर भी आप उन्हें डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसका मतलब है उनकी पिच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है. पिच का मतलब होता है श्रिलनेस से, और पिच का डायरेक्टली रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी से. जिस तरह लाउडनेस रिलेटेड रहती है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड से, उसी तरह पिच रिलेटेड होती है फ्रीक्वेंसी से. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू साउंड्स, एक साउंड इस तरह से एंड द सेकेंड साउंड विल बी लाइक दैट. अब सेम टाइम इंटरवल में अगर हम देखें तो यहां पर 1 and 2 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, और अगर हम यहां देखें 1, 2 and 3, देयर आर 3 वाइब्रेशंस, और ये दोनों सेम टाइम इंटरवल में है. इसका मतलब क्या हो गया? इट हैज मोर वाइब्रेशंस पर सेकेंड, विच मींस अगर इसको F2 लिखिए, इसको F1 लिखिए, सो द वैल्यू ऑफ F2 विल बी ग्रेटर देन F1. फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, सो दिस साउंड इज कॉल्ड एज shrill sound and this sound is called as flat sound. वहां पे soft और loud sound होते हैं, यहां पे flat और shrill होते हैं. वहां पर loudness के केस में we are observing amplitude and in this case we observe frequency. Frequency means number of vibrations per second. So pitch एक ऐसी property है जब दो sounds की loudness और quality same हो, फिर भी हम उन्हें अलग अलग identify कर सकें, then the characteristic of sound used over there is pitch. Pitch means shrillness. For इसका best example है the voice of males and females. आपने observe किया होगा generally males की जो voice होती है वो flat होती है, और females की voice जो होती है that is shrill. तो इसका मतलब clear है, the frequency of females voice is more than the frequency of male's voice. Because of shrillness we can identify male and female without looking at them. अगर हमारे गेट के बाहर मम्मी ने एक आवाज लगाई और एक आवाज पापा ने लगाई, we can differentiate very easily because there is a difference in the frequency, difference in the pitch. Okay, so pitch की definition मैंने आपको क्लियर कर दी है. पिच का मैंने जो जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, वो आपको क्लियर कर दिया है. अब बात आती है इनमें से सब्जेक्टिव कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्टिव कौन सी है. पिच एंड फ्रीक्वेंसी. अगेन वही कॉन्सेप्ट मैं दोबारा आपसे बोलूंगा. जिस तरह लाउडनेस अलग अलग लिसनर को अलग अलग सुनाई दे सकती है, यही काम होता है पिच के साथ. पिच भी अलग अलग सुनने वाले को अलग अलग समझ में आ सकती है. सो इट इज सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी. पिच बन जाती है सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी और फ्रीक्वेंसी बन जाती है ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी. बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है पिच पर, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रही है. ऑब्जेक्ट जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर देगा वो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन अलग अलग लिसनर के लिए पिच अलग अलग हो सकती है. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी. हम पिच को नहीं मेजर कर सकते, हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करके पिच के बारे में बता सकते हैं. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पिच. नाउ देयर आर सम एप्लीकेशंस जहां पर हम लोग पिच का यूज करके बहुत सारे काम करते हैं. जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर नहीं किया है तो अब कीजिएगा. बकेट में टैप के नीचे आप एक बकेट रख दीजिए जिसमें पानी भर रहा है. आप ऑब्जर्व करोगे जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर आता है वैसे वैसे जो श्रिलनेस ऑफ साउंड है दैट चेंजेस. आप आंख बंद करके भी एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ अब बकेट पूरी तरह से भर चुकी है. वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे बकेट भर रही है द लेंथ ऑफ एयर कॉलम डिक्रीजेस. भाई उसके अंदर पानी आता जा रहा है ना. शुरुआत में बकेट में पूरा एयर कॉलम बना था, जैसे जैसे उसके अंदर वाटर फिल होता जा रहा है एयर कॉलम डिक्रीजेस, और एयर कॉलम डिक्रीज होने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस. दैट इज व्हाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो पिच भी इंक्रीज हो जाएगी. अ श्रिल साउंड विल कम. एक श्रिल साउंड प्रोड्यूस होने लगेगा जो कि आपको ये बता देगा कि बकेट धीरे धीरे फिल हो रही है. विदाउट सीइंग एट द बकेट यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन जज दैट बकेट इज फिलिंग और नॉट. ओके, इसी तरह के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको फीमेल्स और मेल्स की वॉइसेस में डिफरेंशिएट किया. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि पिच का किस तरह एप्लीकेशंस जनरल लाइफ में यूज होता है. लाउडनेस मींस लाउड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड.
pitch means shrill sound and flat sound. Now we are going to discuss the next property, which is quality. क्वालिटी में हम लोग ये सीखेंगे बेटा कि अगर दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको सेम लाउडनेस और सेम पिच के साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके साउंड्स हमें अलग अलग सुनाई देते हैं। रीजन क्या है? इसका रीजन होता है दिस वेव फॉर्म्स, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में वेव पैटर्न्स भी कह सकते हैं। जैसा कि ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, ये एक साउंड है, इसका पैटर्न देखिए अलग तरह से है, और एक ये वेव मैंने बना दी, इसका पैटर्न देखिए, यहां पे देखिए एक कर्वनेस है और यहां पे ट्रायंगुलर शेप्ड है। तो ये दो ऐसी वेव्स हैं जिनके वेव फॉर्म्स डिफरेंट है, तो इनकी क्वालिटी डिफरेंट हो जाएगी, इनकी क्वालिटी में क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। तो जब दो साउंड्स जिनकी लाउडनेस और पिच सेम हो, फिर भी आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दिस कैरेक्टरिस्टिक विच इज कॉल्ड एज क्वालिटी। क्वालिटी इज टोटली रिलेटेड टू वेव फॉर्म्स। अब बात आ जाती है क्वालिटी और वेव फॉर्म में कौन सब्जेक्टिव है और कौन ऑब्जेक्टिव है। सेम वे क्वालिटी इज सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी एंड वेव फॉर्म is objective property. Always remember this point. Loudness में loudness subjective था, amplitude या intensity objective था। pitch के केस में pitch subjective था, और पिच जिस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, दैट इज ऑब्जेक्टिव। यहां पे क्वालिटी सब्जेक्टिव है और क्वालिटी डिपेंड करती है वेव फॉर्म पर, सो वेव फॉर्म इज ऑब्जेक्टिव। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ज्यादा आपको इसमें कुछ ध्यान देना ही नहीं है। अगर दो वेव्स का पैटर्न अलग अलग हो गया, समझ जाइए आप उनकी क्वालिटी अलग अलग है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके दो रिलेटिव्स जिन्हें आप जानते हो गेट के बाहर हैं, दोनों मेल्स हैं, दोनों की लगभग लाउडनेस भी सेम यूज कर रहे हैं, पिच भी लगभग अगर सेम हो गई, लेकिन फिर भी दोनों की आवाज में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। वो डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ क्वालिटी, क्योंकि हर ह्यूमन वॉइस में अलग अलग वेव फॉर्म्स जरूर होते हैं। अगर आप पर्सन्स का एग्जांपल ले लेना चाहते हो तो आप एग्जांपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी दे सकते हो। अगर गिटार या एक सितार या गिटार एक वायलिन, दोनों सेम लाउडनेस पर रखकर सेम पिच पर रखकर प्ले किए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, फिर भी उनसे आने वाला साउंड आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर लोगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ क्वालिटी, क्योंकि उन दोनों के वेव फॉर्म्स पूरी तरह से अलग अलग होंगे। सो जब किसी भी साउंड में लाउडनेस और पिच सेम हो जाती है, लेकिन वो साउंड अलग अलग हमें इफेक्ट उनका अलग अलग लगता है बिकॉज ऑफ क्वालिटी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी। ओके, क्वालिटी में क्वालिटी इज अ सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, वेव फॉर्म इज अ objective property, is an objective property. So this is the complete information related to loudness, pitch and quality. These are the three main characteristics of sound. याद रखेंगे? Okay, next वीडियो में हम मिलते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।